हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर कलाम। आई एम योर टीचर एंड मेंटर अर्पिता शर्मा। आपको समझ तो आ गया होगा फ्रॉम द टाइटल एंड द थंबनेल दैट व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट टुडे, बट दिस सेशन वाज मच रिक्वायर्ड। 2026 अटेम्प्ट इज नाउ जस्ट 9 to 8 months अवे। 2026 का प्रीलिम्स अब 8-9 महीने ही दूर है, ज्यादा टाइम है नहीं हमारे पास। But many few students have realized this fact and they have started mailing me, ma'am, prelims is few months away and we are focusing on optional also. We will be soon starting practicing the test series as well. तो अभी strategy क्या होनी चाहिए? Because when we start solving the previous year questions, it becomes very tough for us to understand कि now from where which question should we start solving. There are, ऐसा नहीं है कि from question one itself we have all the answers. There are few questions in between on which we have no clue. So how to actually attempt the question paper? Because keeping that in mind, we'll be practicing mock test also. We'll be solving other PYQs as well. तो इस सेशन में आई एम गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ 2025 प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी थ्रू विच यू कैन सॉल्व एंड इवन जंप दी कट ऑफ बार। जो कट ऑफ की बार आती है ना, उसको भी अगर आप जंप करना चाहो तो कर सकते हो, अगर स्मार्टली अप्रोच करो प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर को। और वो स्मार्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस कीपिंग इन माइंड दी recent prelims paper. Okay, so please take out a register. If you have the prelims question paper 2025 वाला, please उसको निकाल लो, नहीं तो register निकाल लो, so that we can understand and we can make a mind map or strategy map accordingly. All right, let's get started everyone. Hi everyone, let us start decoding and we are going to take the help of the 2025 prelims question paper in this session. ठीक है? If we analyze, वैसे तो I have analyzed 2025 prelims question paper. There is a video, the link is also given below in the description box. पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व हुआ है, बट लेट अस अंडरस्टैंड क्वेश्चन पेपर को एज अपना बेस लेकर हाउ वी आर गोइंग टू क्लियर और जंप द कट ऑफ. So basically, when we look at this question paper, first of all, how was the question paper of this year? It was somewhere from moderate to challenging. Okay, तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर. ऐसा नहीं है कि easy था पेपर. No, it was not easy. It was moderate to challenging. Okay, because tricky questions आए थे. Practical application test की गई है. So UPSC has become really smart when it comes to testing or tricking you into revealing कि आपने कितना रोट लर्न किया और कितना आपने चीज़ों को समझा. Another analysis is that conceptual questions were heavy. That means आपके conceptual testing हो रही है. You are being tested conceptually now. ठीक है, तो conceptual testing आपकी prelims 2025 में हुई है. कैसे? I'll show you, don't worry. ठीक है. Next important aspect, there were 4 core papers that I could see कि prelims में focus UPSC ने बहुत किया है. First was polity. Polity पे तो every year UPSC focuses heavily. Then we had environment, then we had economy and history. Somewhere around 14 questions were from polity, somewhere around 18 questions were from economy, somewhere around 15 questions आपके यहाँ पर आए हैं from environment and history से, somewhere around 14 questions total ancient modern history and your art and culture पूछे गए. Then हमारे पास social issues and scheme, geography, science and tech and IR तो हो ही जाता है, ठीक है, but major questions were from this segment, polity, environment, eco, history. Here I could sense कि economy में ना practical oriented questions बहुत पूछे हैं. That means now if you are just learning the definitions, that is not going to be enough. Fiscal deficit समझ लिया क्या होता है, अब उसको calculate कैसे करोगे ये भी टेस्ट किया जा रहा है. Okay, how are you going to calculate it? For example, I'll show you an example. ठीक है, मैं example भी दिखा देती हूँ आपको. हम practice PYQ में गए, we select 2025 as the year, economy as the subject, and I'll show you a question on fiscal deficit which has been asked. देखो, a country's fiscal deficit stands at rupees 50,000 crores. It is receiving 10,000 crores through non-debt creating capital receipt. Country's interest liabilities are given to you. Gross primary deficit निकालो. पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली, इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे. मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कुड नॉट सॉल्व इट. आई एम नॉट सेइंग नो वन कैन सॉल्व इट, पीपल कैन सॉल्व इट, बट जिन्होंने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग किए हैं. बट अगर आपने सिर्फ डेफिनेशन रटी है तो ये सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है. And that is what is being tested by UPSC this time. Another important aspect, if I tell you na, it was NCERT heavy. NCERT heavy tha, class 12th NCERT. Many students, they come up with this doubt and they waste 5 to 6 months figuring out class 6 से पढ़ना शुरू करेंगे NCERT. No, क्लास 6 से 10 तक जो भी आपने पढ़ा वो 11th 12th में कवर होगा.
सिक्स्थ में लैंग्वेज बहुत बच्चों जैसी सिंपल लिखी होती है, बिकॉज आप सिक्स क्लास में बहुत छोटे होते हो, राइट? सो मेक श्योर दैट वॉट एवर एनसीईआरटीज you are studying class 11 to class 12 NCRTs in polity, in economy, in geography, as well as in history. Make sure for these topics you are covering current affairs daily. Now on Super Kalam, if you go to the home page, you have free NCRT initiative over here. ठीक है, chapter wise, subject wise. If you go to current affairs, you have daily the Hindu newspaper analysis, including the editorials also. फिर अब किस बात की देरी, मंथली मैगजीन्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही हैं, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव. वही है, थिंकर्स और एग्जीक्यूट करने वालों के बीच में बहुत मेजर डिफरेंस होता है. थिंकर्स सिर्फ सोचते रहते हैं, चीजें कलेक्ट करते रहते हैं. एग्जीक्यूट करने वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो इतना टाइम वेस्ट नहीं करते सेव्ड मटेरियल को बैठ के देखने में. वो उसको पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, टेस्ट देते हैं, खत्म करते हैं. ठीक है, तभी तो कॉन्फिडेंस गेन होता है. और कहाँ से कॉन्फिडेंस आता है बच्चों में? यहीं से आता है. सो वी हैव अंडरस्टूड कि बेसिक एनसीईआरटीज क्लास 11-12 आर गोइंग टू हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर स्कोर्स. Secondly, we have understood current affair की importance. We have understood the core subjects that UPSC has been focusing on. समझ आ गया? हिस्ट्री तो इस बार पूरी एनसीईआरटी से ही उठा के डाली. अगर किसी ने भी एनसीईआरटी को 2 बार रिवाइज किया होगा ना, 11-12 की हिस्ट्री एनसीईआरटी, उसका तो हिस्ट्री का सेक्शन बहुत इजीली निकला होगा. आर्ट एंड कल्चर से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो ROI आपको समझ आ गया. नाउ यू मस्ट बी स्टार्टिंग विद द टेस्ट सीरीज वेरी सून, राइट? सोच रहे होगे ना, हम भी टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, तो आप भी सोच रहे होगे सितंबर अक्टूबर तक टेस्ट सीरीज लगानी ही है, 12-13 टेस्ट तो देने हैं, राइट? वी आर गोइंग टू कीप अ गोल ऑफ 120 प्लस इन आर टेस्ट सीरीज. ठीक है, अपनी टेस्ट सीरीज में गोल रखना 120, क्योंकि हमें यही गोल अपने एक्चुअल एग्जाम में रखना है. ठीक है, वी कांट सेटल डाउन एट 70-80, प्लीज, वी कांट डू दैट. ठीक है, हमें 100 प्लस 110 प्लस तो गोल रखना ही है अपने दिमाग में. बट हाउ टू अचीव इट? Practice makes a man perfect. Keeping in mind the goal of 120 plus, we are going to solve the question paper in 3 rounds. जब question paper आता है तो आप उसको 3 rounds में solve करोगे. First round 1 would be confidence booster round, where we will invest 30 to 35 minutes. Okay, तो इसमें क्या करना है आपको? You have to quickly answer, you have to write it down, quickly answer all the questions in which you are 100% sure. जहां आपको श्योरिटी है इसका आंसर मुझे आता है. दिस विल बी बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे आपके बेस्ड होगा. सो वट एवर क्वेश्चन यू आर स्लाइटली अनश्योर ऑफ, यू आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट इट. ओनली दोज क्वेश्चंस इन विच यू आर 100% श्योर. फॉर एग्जाम्पल, क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ गया, पूरी श्योरिटी है, सॉल्व करो, मार्क करो, आगे बढ़ो, राइट? लेट्स से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आ गया, पूरी श्योरिटी है, सॉल्व करो, आगे बढ़ो. These are usually direct MCQs. For example, constitutional provisions, environment के terms के ऊपर कोई question है. So you have to target 30 to 35 questions here. This early momentum builds confidence and it helps you secure marks without any risk. 30 to 35 questions यहाँ पर आप target करोगे, जिसमें आपको 100% surety है. Then comes round number 2. Now in round number 2, what are we going to do? This would be the elimination round. Next 35 to 40 minutes you are going to invest here. You have to tackle the questions where you can eliminate, write it down, where you can eliminate at least 1 to 2 wrong options. स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनमें से एक या 2 रॉन्ग ऑप्शंस आप एलिमिनेट अगर कर सकते हो. यू हैव टू यूज लॉजिकल एलिमिनेशन, कीवर्ड स्पॉटिंग. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं ना, ऑलवेज, इन क्वेश्चन और नेवर, उन पे फोकस करना है आपको. 99.99% ऑफ द टाइम दीज कीवर्ड्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन एलिमिनेटिंग द रॉन्ग ऑप्शंस. ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस आप स्पेंड करोगे, एलिमिनेशन राउंड वाले क्वेश्चंस बनाओगे और उनको सॉल्व करोगे. नाउ मोस्ट स्टूडेंट से मैम एलिमिनेशन राउंड तो हट ही गया, पूरी तरीके से नहीं हटा है. स्टिल यू कैन डू कीवर्ड स्पॉटिंग, ऑलवेज, ओनली, ऐसे जब कीवर्ड्स आते हैं ना, वहां आपको डायरेक्टली पता चल जाता है इफ स्टेटमेंट इज राइट और स्टेटमेंट इज रॉन्ग. एंड देन लास्ट 20-25 मिनट्स जो आपके होंगे वो आप इन्वेस्ट करोगे राउंड 3 में, कैलकुलेटेड गेस राउंड. विद रिमेनिंग टाइम address the marked और address the uncertain questions. अब मैं ये नहीं कह रही कि सारे uncertain questions solve करने हैं, no, only attempt if you can narrow choices down to 2. आप जब अपने 4 options दिए उनमें से you can narrow down your choices to 2 options, only then try to attempt that question. Okay, अभी तक आपने 65 से 70 questions attempt कर ही लिए होंगे, right?
Use the final 20-25 minutes to add up to 10 to 15 more. This maximizes your attempts while avoiding the blind guessing, जिससे आपको नेगेटिव मार्किंग मिल जाती है. सो ऑलवेज फोकस एक्यूरेसी फर्स्ट. हमेशा अपने पेपर सॉल्विंग में जब भी आप क्वेश्चन पेपर उठाओ, इवन इन मॉक टेस्ट, व्हेन यू पिक अप द मॉक टेस्ट, एक्यूरेसी फर्स्ट लेकर चलनी है आपको. डू नॉट ब्लाइंडली गेस. ओनली गेस इफ यू हैव लॉजिकली एलिमिनेटेड द ऑप्शंस. तो नॉलेज प्लस एलिमिनेशन है जो आपको हेल्प करेगा. ओके. पॉलिटी में जनरली डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो जब आप राउंड 1 शुरू करोगे ना, तो पॉलिटी को टारगेट करना. ठीक है. हिस्ट्री को टारगेट करना, इस सीक्वेंस में चलना. ज्योग्राफी को टारगेट करना बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आर आस्क्ड. इकोनॉमी को टारगेट करना. इन दिस सीक्वेंस इन राउंड 1 यू कैन मूव. देन राउंड 2 में एलिमिनेशन है साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, सोशल इश्यूज एंड स्कीम्स. वहां राउंड 2 आप यहाँ पर यूज कर सकते हो. कैलकुलेटेड गेसेस आ जाते हैं. यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस अनसर्टन आपके रह गए थे इन ऑल दीज, इंक्लूडिंग द आईआर पोर्शन और करंट अफेयर पोर्शन, you can utilize those questions in round 3. okay, जितने भी miscellaneous questions है. so always remember, आपका ना एक गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए. क्या होना चाहिए? राइट इट डाउन. अटेम्प्ट मैक्सिमम सेफ क्वेश्चंस. चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ही क्यों ना हो, पर आपके सेफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट आपको करना है. डू नॉट लीव ऑल अनसर्टन क्वेश्चंस ब्लैंक. ट्राई टू एलिमिनेट 2 ऑप्शंस, बट ब्लाइंड गेसिंग भी नहीं करनी है आपको. ओके. तो आपको करना क्या है? रिमेंबर, टारगेट 60 प्लस क्वेश्चंस जो आप करेक्ट करोगे. ठीक है. स्कोरिंग 120 मीन्स अबाउट 60 राइट क्वेश्चंस, राइट. बट हर रॉन्ग क्वेश्चन में -0.66 हो जाएगा. सो एम टू अटेम्प्ट फॉर 65 प्लस क्वेश्चंस. ओके. एक एरर का मार्जिन भी रखना अपने पास. ठीक है. टाइम मैनेजमेंट करना है आपको. यू हैव टू मैनेज टाइम रियली वेल. तो रफली 30 मिनट फॉर राउंड 1, देन रफली 30 मिनट्स फॉर राउंड 2, देन रेस्ट ऑफ द मिनट्स आप अपने राउंड 3 के लिए एंड फाइनल चेक के लिए रख सकते हो. एंड प्रैक्टिस मॉक्स, बिकॉज जब आप अपने माइंड को, ब्रेन को सिमुलेट करोगे एंड अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग टू अप्लाई राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ट्रस्ट मी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली ऑन द डी डे विल ऑल्सो इंक्रीज. ओके. So by combining this strategy and by thorough revision through NCERT, through previous year questions, regular practice, trust me, you will be prepared for your goal attempt. So this was the strategy that you must use. अब आपको करना क्या है? You have prepared the syllabus. You must have prepared. It's almost August now. अब तो August आ गया. तो you must have prepared your syllabus somewhere around 65 to 70%. नहीं तो 50% तो कर ही लिया होगा. Half of the year has passed by. So pick up 2021's prelims question paper. 2021. I am saying it because मुझे पता है कि लेवल कैसा था 2021 में. Pick that question paper up. Try to solve using the rounds that I shared with all of you. Round 1, round 2, round 3. And tell me your scores in the comment section. Even when it is less. Along with your scores, tell me what did you learn while solving the question paper about your own self, about your own preparation. ये आपका आज का असाइनमेंट है मेरी तरफ से. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर पेइंग हीड टू द एडवाइस एंड सजेशंस दैट आई एम गिविंग यू एवरी डे. ओके. तो ये आपका असाइनमेंट है. आई एम गोइंग टू वेट फॉर योर रिप्लाईज इन द कमेंट सेक्शन.